Good morning, friends. Myself Kedar Badheka, and today I am taking a last lecture of our series of the production technology. The topic of my today's lecture is about the uh, design of punch and die for the press operations. Right? In the previous lectures, we are discussing the various very basics about the press tool operations and different types of the press, different types of the punch, right? So before that, we also have to understand about the that are some of the factors which is affecting during the strip layout. Now, what is the strip layout? That is a very new terminology for yours, right? The strip layout is just is like that. Suppose you all are suppose you are operating a kind of the press, right? Normally the press operations are performed on the sheet metals, right? Now for the sheet metals, your layout of the strip, how to utilize the strip, right? What is the directions of the inserts and what is the directions of the banding and what is the directions of the cutting, that is the about the factors which is affecting during the strips, right? When we are doing the kind of the operations on the press, like with using the punch and die, so the all the operation which is carried out on the strips, right? Now first we have to some kind of the make some kind of the layout on the strips before we are starting the operations, right? Based on that layout we are performing some kind of the operations on that sheet metals, right? But whenever we are planning or plotting some kind of the layouts, right, we have to understand the basic matters which is very important regarding the layout. So this is all regarding the strips layout. So we are discussing some of the factors which is affecting during the strip layout in the details, right? The here you can show in your screen, right, the various factors which is affecting to the strip layout. The first factor, which is the grain directions, then the cost of tooling, as of operations, availability of the standard strip widths, next which is the strips or the coil stokes, directions of the burrs, and seventh and last which is the narrow run or the wide run. So basically we always, the first which is the grain direction, the grain direction which is very important, right? Suppose you are doing banding or some kind of the rolling operations on the strip, right? So you have to always insert your strip as the grain directions, as the elongated grains are which is forms और which is forms link by links, right? हम बेसिक में आपको इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ ना, तो ये जो ग्रेन डायरेक्शंस, जो भी ग्रेन का डायरेक्शंस होगा ना, उस डायरेक्शंस के अंदर आपको आपका जो स्ट्रिप्स है ना उस पे लेआउट डिज़ाइन करना है और वैसे ही आपको प्रेस के अंदर इंसर्ट करना है. आप रॉन्ग डायरेक्शन में इंसर्ट करोगे ना तो फिर वहाँ पे ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट विच इज़ द कॉस्ट ऑफ द टूलिंग. सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये प्रेस वर्क में ये काफ़ी कॉस्टलियर टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. देन द एस ऑफ ऑपरेशन, द स्ट्रिप हैज़ टू बी प्लान इन सच अ वे दैट द एक्चुअल फीडिंग इनटू द डाई इज एज सिंपल एज पॉसिबल. वो एक सिंपल होना चाहिए क्योंकि वो इंसर्ट करने वाला, फीड करने वाला जो स्ट्रिप हम फीड कर, वो ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा तो फिर परफॉर्म करना और डिफिकल्ट हो जाएगा. देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड स्ट्रिप विड्थ. ये जो स्ट्रिप्स है वो कौन सी विड्थ में आपको अवेलेबल है और फिर बाद में इसी विड्थ में आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, वो भी हमें पहले ही वी हैव टू make sure about that, right? The strips or the coil stocks. The available stock is maybe in the form of the coils or the strips. So a strip is maybe passed through the die any number of times, but the coil stock is usually passed through the die only once, right? Then the directions of the burrs, right? Sometimes we are observed that some kind of the spots which is marks on the
योर स्ट्रिप्स शीट मेटल्स, राइट, दैट इज़ दी बर्स। तो वो हमें बर्स जो मार्क्स जो हो गए हैं ना, वो उसकी डायरेक्शंस को हमें एक बार देख के फिर ऑपरेशंस प्लान करने चाहिए। नेक्स्ट, द सेवन्थ विच इज़ दी नैरो रन और वाइड रन्स। सो ये नैरो रन और वाइड रन्स बेसिकली ये चीज़ है, जैसे आप फीडिंग करते हो, राइट। सो अगर आपका फीडिंग डायरेक्शंस है जो वो एक नैरो साइड होगा, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज ए नैरो रन, अदरवाइज इट वुड बी वाइड रन। मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन द विड्थ, राइट, आपका जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू विड्थ, it is necessary to make a choice whether to keep the length side or width size for the feeding directions, right? If the narrow side is towards the feeding, अगर हम लोग narrow side डालते हैं, right, then it is called a narrow run, और हम width side डालते हैं then it is called as a width run. Then another aspect of this lecture which is about the, ये जो आप देख सकते हैं ना, वो नैरो रन और वाइड रन वाला आपको फिगर दिख रहा है। अगर आप विड्थ साइड डालोगे दैट इज वाइड विड्थ रन, आप लेंथ साइड डालोगे दैट इज दी नैरो रन, राइट। देन द मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर किसको बोलते हैं? द इकोनॉमी ऑफ द मटेरियल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी आप कितने मटेरियल यूज कर रहे हो। सो द मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ब्लैंक कट, कितना एरिया आप ब्लैंक कट करते हो फ्रॉम द एरिया ऑफ द शीट विच इज़ यूज्ड। आपने जो शीट्स है आपके पास उसमें से कितना एरिया है वो ब्लैंक कट करने में यूज किया, दैट इज ऑल कॉल्ड एज ए वो आपका मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर्स। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ अबाउट द डाई डिज़ाइन। नाउ अगर हम लोग डाई डिज़ाइन करते हैं तो फिर सम ऑफ दी फैक्टर्स वी शुड कंसिडर, राइट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस में जाता है बेसिकली द डाई डिज़ाइन विच इज़ डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है, वो वर्क पीस का साइज एंड काउंटर्स। देन थर्ड विच इज़ दी थिकनेस ऑफ द वर्क मटेरियल, आपका वर्क मटेरियल का कौन सा कितना थिकनेस है एंड हमें कौन से ऑपरेशंस करने हैं, वो चीज़ के ऊपर डाइज डिज़ाइन काफ़ी डिपेंड्स करता है। द नंबर ऑफ स्टेशन विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड विच इज़ डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द डाई वी हैव सिलेक्टेड एंड द ऑपरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जो रहेगा वो दैट इज़ द ब्लैंकिंग डाई डिज़ाइन। अब जो ब्लैंक रहेगा उसका डाई डिज़ाइन किस पे करें? सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ द ब्लैंकिंग डाइज, वन विच इज़ द ड्रॉप थ्रू डाई एंड सेकेंड विच इज़ द inverted die. So in drop through die, the die block assembly is mounted. जो die block assembly is mounted on the bolster plate and press bed while the punch assembly is open on the press side. So अगर inverted die में क्या होता है? In inverted die design, the punch is become the lower stationary part. आपका जो पंच है ना वो लोअर स्टेशनरी पार्ट बन जाता है, while the die is mounted on the RAM, जो आपका डाई है ना वो रैम पे माउंट हो जाती है। देन जो है वो आपका डाई ब्लॉक। अब डाई ब्लॉक में क्या होता है तो कि डाई ब्लॉक के अंदर द साइज ऑफ द डाई ब्लॉक विच इज डिपेंड्स ऑन द वर्कपीस साइज एंड द स्ट्रोक थिकनेस। सो द टाइप्स ऑफ डाई एंड द टाइप्स ऑफ the blank counters are also influences the choice of the die block size, right? So ये जो important aspect थे which is all about the die design। अब हमारे पास उसके बाद वाला जो पोर्शंस रहेगा वो आपके स्क्रीन के सामने एक फिगर आपको दिख रहा है, राइट। वो फिगर है वो पंच के डिज़ाइन के ऊपर जो फिगर है। सो the choice of the types of the punch and its design which is depends upon the shape and size of the blank, जो हमारा blank है ना and work material, उसके ऊपर काफ़ी डिज़ाइन उसका डिपेंड्स है। जो आपका पंच है ना, पंच का डिज़ाइन हम लोग कैसे करना है, तो एक तो पंच का टाइप कौन सा है, फिर
हम जो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं वो डिज़ाइन के लिए हमें वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका शेप एंड साइज ऑफ द ब्लैंक कौन सा है और वो कौन सा मटेरियल में बना है. सो द लार्ज कटिंग पैरीमीटर्स विच इज़ रिक्वायर्ड, larger punches which is inherently rigid and can be mounted directly. So the size of the punch is calculated considering a proper clearance requirement depending upon the operations. So ये हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. द पंच लेंथ इज मस्ट बी प्रोवाइडेड इन anticipated numbers of the rigits. So the minimum length of the punch which is calculated as a जैसे हमको वो एक इक्वेशंस है जिससे हम लोग वो पंच लेंथ वो कैलकुलेट कर सकते हैं. पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाएगा, द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल शेप ऑफ द पंच विच इज़ द स्ट्रेट पंच जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. सेकेंड विच इज़ द पंच विद द स्टेप हेड, वो इसमें एक स्टेप हेड दिख रहा है, राइट. सेकेंड द थर्ड विच इज़ द पंच विद द बेवल हेड, उसमें थोड़ा हेड जो है वो उसको बेवल किया है. देन द परफोरेटर्स पंच और लास्ट विच इज़ द परफोरेटर पंच. सो ये जो चार टाइप्स के पंच हैं वो उसकी डिज़ाइन में काफ़ी वो अहम उसका रोल प्ले कर रहे हैं, राइट. अब ये चीज़ उसके बाद हो जाएगी कि द मेथड ऑफ माउंटिंग ऑफ द पंच, हम लोग पंच को माउंटेड कैसे करें, राइट. तो द पंचेस आर माउंटेड इन द प्रेसेस इन द नंबर ऑफ वेज. उसको हम लोग काफ़ी तरीके से प्रेस के अंदर पंच को माउंट कर सकते हैं, विच इज़ अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका साइज़ कौन सी है, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस रिक्वायरमेंट्स, राइट. कितने नंबर ऑफ पंच हमें माउंट करने हैं और हमारी प्रोडक्शंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है. सो ये जो आपके सामने आपको दिख रही है दैट इज़ द वेरी कॉमन अरेंजमेंट्स. सो a large number of punches can be manufactured with the flanges and mounted directly on the punch holder with the help of the bolts. Basically जो आपका पंच है वो माउंटेड किया जाता है विथ यूजिंग सम काइंड ऑफ वोल्टिंग अरेंजमेंट, राइट. वो हम लोग उसको माउंट कर सकते हैं. अब आपके सामने आपको फिगर में जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ना, वो जो दैट इज़ द सॉफ्ट प्लग, राइट. ए सॉफ्ट प्लग और इंसर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन स्मॉल प्लग्स एज शोन टू अवॉइड द क्रैकिंग ऑफ द प्लेट. वो जो प्लेट है ना उसको क्रैक करने से वो बचा सकते हैं. इस तरीके से हम वो पंच को वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट विच इज़ रिगार्डिंग जो जी है आपका, विच इज़ द लॉन्ग पिन, एक क्विल जैसा दिख रहा है आपको, राइट. लॉन्ग पिन पंचेस विच इज़ यूज्ड फॉर पियर्सिंग very small hole in heavy stroke are provided with the hardened quill as shown in the figure. Next, जो आपका H, that is the quill. The quill which is provided is support for the punch for the entire length of the stripper plates. वो जो आपका पंच है ना वो क्विल है, वो क्या करेगी, वो एक साइड में से आपको वो सपोर्ट दे देंगी, राइट. देन आई ए बुशिंग, यहाँ पे क्या किया, एक बुशिंग दे दी गया हमें, उसमें से वो ज़्यादा ग्रिप हो जाएगा. सो मे बी प्रोवाइडेड इन दी ट्रिपल प्लेट्स टू गाइड दी क्विल, वो क्विल को प्रॉपर तरीके से वो गाइड कर देगा. एंड लास्ट विच इज़ दी ए लार्ज पियर्सिंग पंचिंग आर प्रोवाइडेड विद दी स्ट्रिप्ड लोड पुश ऑफ एज शोन. एक जो है ना वो स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला दिया है ताकि उस तरीके से भी हम लोग उसको वहाँ पे पंच को प्रेस में माउंट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ द डिफरेंट माउंटिंग्स ऑफ द पंचेस, राइट. नाउ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द कटिंग फोर्सेस. अब कटिंग फोर्सेस को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये प्रेस ऑपरेशंस के अंदर. तो बेसिकली दो टाइप्स के यहाँ पे मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द प्रोविजन ऑफ द शियर एंड पंच स्टैगरिंग, राइट. ये जो दो मेथड्स हैं, एक जो है फर्स्ट मेथड विच इज़ दी प्रोविजन ऑफ द शेयर. हम लोग जो हैं वो एक शेयर
जो है वो घटा के वो कटिंग फोर्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा रह जाएगा पंच स्टैगरिंग। सो जैसे मैं हम लोग आप लोग कल डिस्कस किया था, ये जो आपका सिंगल शेयर रहता है, डबल शेयर रहता है, राउंडेड शेयर्स रहता है, आप जैसे ही वो आपका जो नीचे डाई वाला पोर्शंस है उसके शेप्स चेंज करेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ ना, सो द शेयरिंग एज एक्सप्लेन अर्लियर विच इज़ रिड्यूस द कटिंग फोर्सेस। जो शेयर है वो क्या करता है, तो कि वो जैसे आप में ईजी लैंग्वेज में जाए ना, तो कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग फोर्सफुली इंसर्ट कर रहे हैं और बीच में कोई चीज़ आ जाती है, राइट, देन इट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ द शेयर्स, राइट। वो आप जो फोर्स लगा रहे हैं ना इंसर्ट करने के लिए, वो फोर्स को वो रिड्यूस कर रहा है। जो कोई बीच सपोज एक आप क्विल डाल रहे हैं अपनी दीवार के अंदर, और दीवार के अंदर एक छोटा सा पत्थर आ जाता है, सो वो पत्थर वहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो पत्थर है ना वो वहाँ पे एक शेयर प्रोड्यूस कर रहा है जो कि आपकी क्विल को इजीली दीवार के अंदर घुसने नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे वही चीज़, सो जो शेयरिंग हम लोग प्रोवाइड करके वो कटिंग फोर्स है ना उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। इट डज नॉट चेंज द टोटल वर्क डन फॉर द शेयरिंग। फॉर ब्लैंकिंग ऑपरेशन द शेयर इज प्रोवाइडेड ऑन द डाई। जो डाई है ना उसके अंदर शेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और मे बी प्रोवाइडेड ऑन द वन वे ऑफ द, एक साइड पे हम लोग वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डाई के अंदर हम लोग ऐसा प्रोवाइड करके, शेयर प्रोवाइड करके हम उसको कटिंग फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड विच इज़ द पंच स्टेगरिंग। इन पंच स्टेगरिंग द shearing action by two or more punches that operate in one stroke is called as a staggers। इसको स्टेगर्स को कैसे हम लोग इजी लैंग्वेज में समझे, इन पंच स्टेगरिंग्स के अंदर क्या होता है, द शेयरिंग एक्शन बाय, जो स्टेनिंग एक्शंस हैं विच इज डन बाय टू और मोर पंचेस, दो पंच से हम लोग वो करते हैं, पंचिंग एक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेट वन स्ट्रोक इज फॉर द स्ट्रैगरिंग। द पंचेस आर अरेंज इन सच अ वे दैट one does not enter the material until the one before it was penetrate through। यानी वो क्या करेगा कि सपोज आपके दो पंच है, जब तक एक पंच आपका पूरा थोरोली वहां पे पेनिट्रेट नहीं हो जाता तब तक दूसरा पंच है ना वो वहां पे पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो सिर्फ मटेरियल को वहां पे बाहर से वो शेयरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो आपका वो वहाँ पे क्या काम करेगा, वो ज़्यादातर बेनिफिट्स रहेगा वहाँ पे वो कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए। यानी एक पंच है वो पूरा पूरा इंसर्ट हो चुका है, और एक पंच है वो क्या करेगा, थोड़ा जैसे आपका मैं बताऊँ ना, आपके 5 के 10 mm जितना वो एंटर करने का कोशिश करेगा पर वो थरोली इंसर्ट नहीं होगा, तो फिर वो वहाँ पे वो जो फोर्सेस आप लगा रहे हैं ना वो फोर्सेस वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट। सो ये दो मेथड्स थी, एक प्रोवाइडिंग विद द shearing on the die, and second which is the about the staggering। now अब ये चीज़ एक मेथड वो है जो आप पंच है ना, पंच जो आपको प्रेस में यूज़ कर रहे हो उसको कोटिंग भी कर सकते हो। जैसे भी हम वो कोटिंग करने से भी हम उसका जो फोर्सेस है वो काफ़ी फोर्सेस में हम लोग कम कर सकते हैं, और उसकी लाइफ को भी हम लोग ज़्यादा उसकी वियर रेजिस्टेंस, वो पंच काफ़ी वियर रेजिस्टेंस हो जाएगा, पंच का वियर काफ़ी कम हो जाएगा, और उसकी लाइफ है वो डेफिनेटली इंक्रीज। जो बेसिक परसेप्शंस है ना इसके पीछे, कोटिंग करने के पीछे, वो वही है कि उसकी लाइफ को हम लोग कैसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो एक तो वो रहेगा टूल मटेरियल, और टूल मटेरियल के ऊपर रहेगा आपका जो कोटिंग हमने कर दिया, तो कोटिंग क्या रहेगा कि पहले वो कोटिंग वाला पोर्शन है वो वेयर आउट होगा, फिर वो टंच जो आपका पंच का मटेरियल है फिर वो आएगा। जैसे ही वो आपका मटेरियल है वो वेयर आउट हो जाएगा कोटेड मटेरियल, तो आप फिर से उसको पंच फिर से आपको उसको कोटिंग कर सकते हो अपने पंच को। सो ये कोटिंग हम लोग नॉर्मली 3 तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन विच इज़ दी PVD विच इज़ दी फिजिकल वेपर डिपोजिशन। हम लोग ये वेपर डिपोजिशन से
उसको कोटिंग कर सकते हैं. देन सेकंड विच इज़ दी केमिकल वेपर डिपोजिशंस एंड थर्ड विच इज़ दी थर्मल रिएक्टिव डिफ्यूजन्स. ये 3 मेथड को हम लोग यूज़ करके उसको कोटिंग करके उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ अवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट द ड्राइंग डाई डिज़ाइन. जो आपका ड्राइंग ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं उसकी डाई हमें डिज़ाइन करते तो कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. फर्स्ट, द कॉर्नर रेडियस ऑन द पंच और पंच रेडियस. जो आपका पंच है ना उसकी जो कॉर्नर है उसकी उसकी रेडियस क्या है और आपके पंच की रेडियस क्या है. राइट. जो आपका कॉर्नर है वो कॉर्नर की रेडियस और पंच के ऊपर जो आपने रेडियस प्रोवाइड की है वो दोनों रेडियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है at the time of the drawing die operations. Second, which is the draw a radius on the die. Draw radius on die and die radius. अगर उसके बाद वाला सेम चीज़ हो जाएगी डाई के ऊपर कि डाई का रेडियस वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकता. देन द क्लियरेंस बिटवीन द पंच एंड डाई. देन द ब्लैंक साइज. ब्लैंक जो आपका जो गड्ढा है उसकी साइज़ क्या है. देन द ड्राइंग फोर्सेस. आप कितना ड्राइंग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो ताकि मटेरियल वो है जो ड्रॉ हो पाए. देन ब्लैंक होल्डिंग फोर्स. अब आप कितना फोर्स होल्ड करके रखोगे तब तक वो मटेरियल कट हो जाए. सेकेंड विच इज़ द आयरनिंग फोर्स. 8 विच इज़ द परसेंटेज रिडक्शंस. 9th विच इज़ द ड्राइंग स्पीड. एंड 10th विच इज़ द एयर वेंट. जो एक हवा के लिए आपने एक छोटा सा हॉल रखा है वो दैट इज कॉल्ड एज ए एयर वेंट. तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो ड्राइंग डाई का डिज़ाइन आप कर रहे हो तब ये काफ़ी रोल इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं. सो ये फैक्टर्स को आपको हमेशा कंसिडर करना है व्हेन एवर यू आर डिज़ाइनिंग ए ड्राइंग डाई. सो ये लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक्स अबाउट द डाई डिज़ाइन के बारे में हमने पढ़ा है. डाई को कैसे डिज़ाइन कर सकते, पंच को कैसे डिज़ाइन कर सकते, कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग द पंच एंड डाई. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पंच एंड डाई. यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 5 है प्रेस टूल वो कंप्लीट हो जाता है. अगर ये चैप्टर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो. अगर ये स्पेसिफिक लेक्चर्स में आपको कुछ समझ नहीं आया यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज ऑन द कमेंट सेक्शंस. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.